Hello friends, this is Dr. S.S. Deshpande and today we are going to study the topic called the pricing strategies. Now this is the fourth unit in the subject of business economics in MCOM semester 1. Now these are the points which we are going to cover in this topic. The first is the marketing mix. The second is the importance of pricing strategies. The third, different objectives of pricing strategy. 4 is the types of pricing strategy. And finally, the advantages and disadvantages of each pricing strategy. Now, the success of the product in the market basically depends on the marketing mix. That is the 4 P's of marketing. Whether the product will be successful or not, it depends on number 1, the price of the product itself, the promotion, and finally the place. Now, the product will become successful in the market if the price of the product is competitive and reasonable, the product is useful and is of good quality, the promotion is impressive and appealing, and finally the place is easy to reach, the ambience is good, and it is convenient for the consumer to reach that place. So these things are absolutely necessary for the success of the product in the market. Now, as far as this topic is concerned, the focus is on pricing. So right now we are not talking about the product, promotion and place. Our focus is on the price of the product. So the current topic focuses on one of the P's of marketing, that is the price. Now, what is the importance of pricing strategy? See, if the pricing strategy of the product goes wrong, then the demand for the product in the market will be less and the product in the market will fail. So if the price is less than what it should be, then what will happen? The company is unnecessarily sacrificing the profit. On the other hand, if the price is more than what it should be, in that case, the company will lose some of its customers. And that is why an accurate pricing strategy is necessary for the product to succeed in the market. Right? What are the objectives of pricing strategy? Now, different companies have different objectives while deciding their pricing strategy. Some of the common objectives of pricing strategy are: number 1, to defend an existing market from the new entrant. Number 2, to increase the market share within the market. And number 3 is to enter a new market. So these are some of the important objectives of the pricing strategy. Now, these are the different types of pricing strategies which are part of the syllabus. The first is called full cost pricing. Sometimes it is also called markup pricing. The second is incremental or marginal cost pricing. The third is price scheming, and fourth is low penetrating price. There is one more which is called multi-product pricing. So that is also something we are going to cover in this topic. So let us start with the first pricing strategy, that is full cost pricing or markup pricing. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में कंपनी का एक प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट होता है कि एक यूनिट पे कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए. तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? सबसे पहले एक यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करती है, उसमें लेबर का पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट किया जाता है. देन द कंपनी फाइंड्स आउट द पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, पर यूनिट ओवरहेड, यानी अगर कोई फिक्स कॉस्ट है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी फाइंड्स आउट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, और उसके बाद कंपनी का एक टारगेटेड प्रॉफिट है एंड दैट इज से ₹100. कंपनी हैज डिसाइडेड दैट
if it will produce and sell one unit, it should earn at least a markup of 100 rupees. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज लेबर की कॉस्ट है, 200 रुपीज है वो मटेरियल की कॉस्ट है, एंड 300 रुपीज इज द पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट. So if you add these three items, you get 600 rupees. So that is the per unit cost of producing one unit. उसमें कंपनी क्या करेगी, it will add the markup and that will give a price equal to rupees 700. So this strategy is known as cost plus pricing. मतलब आपका जो overall cost आता है, okay, over and above that cost plus एक मार्कअप आपको मिलना चाहिए, इसलिए इसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं, इसे मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं. इसमें कंपनी इंश्योर करती है, द कंपनी मेक्स श्योर कि उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट कवर होनी चाहिए, प्लस ओके उसको एक टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए. सो इफ द प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, इट इज नोन एज द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ऑल्सो नोन एज फुल कॉस्ट प्राइसिंग, and sometimes also called the markup pricing. Now the second one is called the marginal or incremental cost pricing. अब full cost pricing और incremental cost pricing में एक basic difference है. Full cost pricing में as the name suggests, overall या full cost के अंदर एक markup add किया जाता है, जबकि incremental cost pricing में कंपनी पूरे कॉस्ट के अंदर मार्कअप ऐड नहीं करती, उसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल यानी एडिशनल कॉस्ट जो होता है, वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक मार्कअप ऐड करके एक प्राइस ऑब्टेन किया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. तो वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ती है ये नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये जो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए कोई भी एडिशनल सेटअप या कोई भी एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती. जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उस एग्जिस्टिंग सेटअप में सेम मशीन्स इक्विपमेंट से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो. तो जब ये नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, लेकिन कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ी. एग्जिस्टिंग सेटअप में ही कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया. तो क्योंकि अब ये जो नया प्रोडक्ट है उसमें कोई एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर ही नहीं हुआ है, तो अननेसेसरीली हम ओवरऑल कॉस्ट के अंदर मार्कअप ऐड करके प्रोडक्ट को महंगा क्यों बनाए. इन ऑर्डर टू कीप द प्राइस रीजनेबल, कंपनी क्या करती है, सिर्फ इंक्रीमेंटल यानी एडिशनल कॉस्ट है उसके अंदर एक मार्कअप ऐड करके एक प्राइस डिसाइड करती है. एक एग्जांपल इस चीज को बड़ा आसान बना देगा. नाउ सी, द कंपनी वाज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स. एक कंपनी है जो ऑलरेडी 8 बिस्किट्स वाला एक छोटा पैकेट कई सालों से बनाती है. अब कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है और ये प्रोडक्ट है बड़ा वाला पैकेट जिसमें 15 बिस्किट है. अब ये 15 बिस्किट वाला नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरली कंपनी को एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी. ऑयल है, फ्लोर है यानी तेल, आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग मटेरियल, इसका कॉस्ट तो इनकर करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है. लेकिन क्या कंपनी को नया मशीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं. उसी मशीन में ये नया वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है. जो मशीन आपको 8 बिस्किट्स प्रोड्यूस करके देता है वही मशीन आपको 15 बिस्किट प्रोड्यूस करके देगा, राइट. कंपनी को क्या कोई नया R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा. क्या कोई नई जमीन खरीदनी पड़ेगी? नहीं खरीदनी पड़ेगी. तो कई बार कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर करना पड़ता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यहां पे क्या किया जाता है, मार्जिनल यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग में वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा
और उसमें हम मार्कअप ऐड करके वी रीच अ पर्टिकुलर प्राइस।